रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। वॉइस ऑफ एशियंस के इस विशेष न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं लुधियाना से एक क्राइम की खबर की तरफ। लुधियाना में केवल 1500 रुपए के लिए एक मजदूर ने अपनी ही रेहड़ी पर काम करने वाले मालिक का कत्ल कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उक्त मजदूर उस रेहड़ी पर काम करता था और रेहड़ी वाले को उसने 10,000 रुपए की नकदी उधार दी हुई थी। इन दिनों उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसने उस उधार दी हुई नकदी में से 1500 रुपए मांगे, लेकिन रेहड़ी के मालिक ने वो पैसा लौटाने से इनकार कर दिया और उसके बच्चे की मौत हो गई। लिहाजा बदला लेते हुए सुनसान रात को तेज हथियार से उसने उस मछली वाले बाबे को काट दिया और मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने आखिरकार उसको गिरफ्तार कर ही लिया। इस बारे में एडीसीपी जोन 1 गुरप्रीत सिंह सिकंद ने पुलिस पार्टी के साथ और एसीपी सेंट्रल वरयाम सिंह और थाना कोतवाली प्रभारी अमनदीप सिंह गिल के साथ इस सारे मामले का खुलासा किया। विकास पामरी के साथ सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। अपने मच्छी वाले का एक बजुर्ग का मर्डर होया सी, जिन्होंने मच्छी वाला परौंठे वाली रेहड़ी लाउंदा, वो बंदा बाबा बाबा कहते सी उन्होंने, वो आइडेंटिफाइड नहीं सी कौन है, क्योंकि उत्थे 15-20 साल का उत्थे रेहड़ी लाउंदा सी। वो उत्थे ही ਉਹਦਾ कोई नौकर आ गया, कोई चढ़ाया गया, ना कोई रिकॉर्ड सीगा ਉਹਦਾ। फिर जो पुलिस ने अपनी आफ्टर केस रजिस्टर होने तो बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, फिर ਉਹਦੇ आइडेंटिफाई किया, इधरों उधरों पुछ पड़ताल करके पता लग्या भी ये ना ਇਹਦਾ ਰਜਿੰਦਰ आ, ਇਹਦੀ 60-65 साल की एज आ और ये इत्थे ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ वाला चौंक आ उत्थे नेड़े तेड़े किते रहिंदा है। फिर अपने एसीपी सरदार वरयाम सिंह ते इंस्पैक्टर कोतवाली अमन गिल, इन्होंने 2 दिन 2 रात मतलब दिन रात एक करता। उस तो बाद घट्टो घट्ट 25-30 बंदे एक लिया, एक आए कड़ी की कड़ी जुड़दी असी जड़ा हकी दोषी है वो ताईं पहुँच गए। ये भी बंदा ਇਹਦਾ बहुत पुराना नोन ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 15-20 हज़ार ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਰਖੜ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੂਰੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਗਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਮਰੀ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ।
participate in the International Jaka Sports. We're very pleased to be here. Sorry? We're feeling very happy. We're just free, like all the Indians. They are welcoming us nicely. Everyone is smiling, so it's a good day for us too. Yes, my name is Arnold. I'm from Zimbabwe. We are also happy to be here. As you can see, we are participating. Everyone is happy. This is my brother. We are all happy together here. Yes. Cuidado com essa taça, resulta combinado. Cuidado, que eu sou
Yo cabelo, el niño se fue cuenta de ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਡਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਖੜ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 7 8 ਗੇਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਭੁੱਟੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਫਰੀਕਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਦਿਨ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੌਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਤੇ ਗਿੱਲ ਹਰਦੀਪ ਉਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਵੀ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਬਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ। आयकर विभाग के द्वारा जोनल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की टीमों ने भाग लिया और ये प्रतियोगिताएं लुधियाना के केवीएम स्कूल के ऑडिटोरियम में की गई जिनमें सोलो डांस, ग्रुप डांस, गजल आदि की प्रतियोगिताएं विशेष तौर पर की गई। आइए देखते हैं इस बारे में विकास पांडी की एक रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना। इनकम टैक्स इन्होंने कला उत्सव यहाँ पे किया जो कि नॉर्थ रीजन का पूरे रीजन का कला उत्सव था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और इनके आइटम्स देख के बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशन मिली कि ये एक देश के सभी लोगों के जो इनकम टैक्स के लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि ये लोग एक काम के अलावा भी अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं और अपने टैलेंट को जिंदा रख रहे हैं। हर साल ऐसे कराया जाता है? मैंने तो इस बार फर्स्ट टाइम देखा है तो मेरे को नहीं मालूम है कि ये कहीं पे अगर पिछली बार कहीं और हुआ हो लेकिन हमारे इधर ऑडिटोरियम में फर्स्ट टाइम हुआ है। मैम आप बच्चों की परफॉर्मेंस देती हैं आज अपनी ऑफिसर्स की देखी तो कैसे हाउ डू यू फील? मुझे आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड। बहुत अच्छा लगा कि जो इनका सेकंड जो इनका डांस आया है उसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह भी थे और मोर देन 50 इयर्स के थे तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ मैं आज। और मेरे को लग रहा है कि कला अभी भी जिंदा है और बहुत टैलेंट है हमारे इंडिया में। डांसेस बहुत अच्छे थे, सोलो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे थे और ग्रुप डांसेस भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू।
लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब के शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने झंडा फहराया और सभी रस्में अदा की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस मौके पर अंगहीन व्यक्तियों को 5 ट्राईसाइकिल, जरूरतमंद औरतों को सिलाई मशीनें और सरकारी स्कूल के बच्चों को 50 साइकिल दिए गए। लुधियाना सिटीजन काउंसिल के ही PRO डॉक्टर SB पांदी को इस मौके पर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया समाज सेवाओं के लिए। विकास भामरी की रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। अग्रवाल जी, पुलिस कमिश्नर लुधियाना डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल जी, ग्रेड कमांडर डॉक्टर प्रज्ञा जैन जी, मैं इसे दस देना चाहूँगा कि अज आप साडा 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं देश का। सिलाई मशीना पंजाब सरकार की हमारी भागो विद्या स्कीम तहत साइकिलों की वंड की जाएगी। तो करेगा खास तौर पर लाखना पढ़ो पढ़ाओ प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बच्चों ने माने ग्राउंड 6 करोड़ किया गया है। बच्चों खेलना जुड़ने जतना मार्च 2017 तो हम तक 4.45 लाख नौजवान पर बेरोजगार किया जा रहा है। पिछले 2 साल दौरान शराब के ठेकों की गिनती 10% बताई गई है। आज के पंकज विराजमान सत्कारयोग मेरे भैनों भराओ प्यारे बच्चों, आज असी अपने देश के गणतंत्र बनने की 90वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं इस शुभ दिहाड़े से देशवासियों, पंजाब वासियों के खास करके भारत के मानचेस्टर पंजाब की योगित राजधानी लुधियाना वासियों दिल दिया गहराइयों तो मुबारकबाद देना। आज के इतिहास के सब तो पहलों मैं देश के उन्होंने शहीदों सिर झुका के प्रणाम करना जिन्हें देश लिए अपनी कुर्बानियां दित्तियां। इस मौके में संविधान सभा के समूह मैंबर, स्वास्थ्य सभा के मुखी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सलाम करना जिन्हें देश में एक नया संविधान दिता जिसने राजतंत्र में कमाला में टुकड़ो दिता। आज के इस पवित्र इतिहास दिहाड़े से मैं देश के फौज, अर्धसैनिक बलों सूबे के पुलिस बलों वालों गणतंत्र के संविधान की राखी लई कीते बलिदान भी प्रणाम करना। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब की अगवाई में सूबा सरकार वालों लोगों की बेहतरी और तरक्की लई
अहम फैसले किए गए हैं, जिन्होंने मैं तुहाडे सामने साझा कर रहा हाँ। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता लिए बड़े फैसले किए हैं। सब्सिडियों का लाभ असल लाभ भारतीयों को देने नगर भुगतान राही सीधा बैंक खातियां में करने की नीति लागू की है। शहरी स्थानक इकाइयां और पंचायती राज संस्थावां में औरतों की राखवाकरण 33% को बढ़ा के 50% किया है। एग्रीकल्चर खत्म करने सरकार ने सरकारी माना ऊपर लाल बत्तियों का खात्मा किया, जिस नीति को बाद केंद्र ने भी बना लिया। सरकार ने नशे को खत्म कर ली, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। इस फोर्स ने हुण तक 19,443 मुकदमे दर्ज किए हैं और 22,933 व्यक्ति गिरफ्तार करके उन्होंने को 469 किलो चिट्टा बरामद किया गया है। सरकार ने नशे के विरुद्ध जनतक मुहिम सिरदे लई नशा रोकथाम अफसर डेपो प्रोग्राम चलाया है, जिस तक हुण तक 5 लाख तो वध नौजवानों ने सर्वे इच्छा नाल अपना नाम दर्ज करवाया है। सूबे के सारे स्कूलों के कॉलेजों के विद्यार्थियों को नशा के बुरे प्रभावों बारे जागरूक करने बड़ी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस तरह 7 लाख बड़ी ग्रुपों का गठन किया गया है। नशा की रोकथाम के इलाज लिए 165 क्लिनिक शुरू की गई है। इन्होंने क्लिनिक में 60,000 नशाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। बेअदबी के मामलों की जांच लिए गठन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर फौजदारी मामले दर्ज करके 129 व्यक्ति गिरफ्तार और 10 व्यक्ति दोषी करार दिए गए हैं। सूबे की अर्थव्यवस्था को गति से लियाने सरकार वालों चुके कदमों सदका कुल राज घरेलू उत्पादन में 21% वाधा दर्ज किया गया है। सूबे में अनाज के कुल उत्पादन में 1% वाधा होया है और फसलों की निर्विघ्न खरीद की जा रही है। फसलों के ढाबे का मुआवजा 8,000 रुपये तो बढ़ा के 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है। पंजाब सरकार ने अपना वादा निभाने सूबे के 10.25 लाख किसानों के खेतीबाड़ी करने की 2 लाख रुपये तक की माफी की है। इस साल 4.1 लाख किसानों को 3500 करोड़ रुपए की कर्जा राहत मिली है। सरकार के क्षेत्र की 80 किसानों के 153 करोड़ रुपए का बेहतर मेगा डेयरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। लुधियाना, बठिंडा, पठानकोट के आदमपुर के 4 हवाई अड्डे को हटाना शुरू किया गया है। इसी तरह हरवाड़ा विखे नवे सिविल इंटरनेशनल एयर टर्मिनल की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। सूबे के नौजवानों को चंगी सिक्ख्या देने मकसद पंजाब सरकार वालों 15 नवे डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह समूह सिक्ख्या ब्लाकों को कवर करके 3500 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। अगे श्री चमकौर साहब नवी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। सारे सरकारी स्कूलों में 23 करोड़ रुपए की लागत फर्नीचर, 13 लाख बच्चों वास्ते 90 करोड़ की लागत वर्दियां, 150 करोड़ मिड डे मील वास्ते 80 करोड़ रुपए की लागत सोलर पैनल, 100 करोड़ की लागत स्मार्ट क्लासरूम, 9 करोड़ की लागत RO वाटर सिस्टम, 120 करोड़ एडिशनल क्लासरूम और 5 करोड़ की लागत स्कूलों में ग्रीन गोल्ड भी दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में सारे वर्गों के विद्यार्थियों को 22.47 करोड़ की लागत फ्री किताबें मुहैया की गई हैं। सारे सरकारी कॉलेज इंटरनेट सुविधा मुहैया की गई है। सरकारी स्कूलों में रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस। सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाए पास।